Good morning, everyone. We are starting chapter number 2, Latitude and Longitude. आज हम chapter number 2, Latitude और Longitude पढ़ेंगे. Since the earth is spherical in shape, it was very difficult to locate a place on earth. So, our map makers devise a system of imaginary lines to form a net or grid on maps and globes. कि अर्थ का शेप स्पेरिकल है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि अर्थ पे हम किसी प्लेस की पोजीशन को लोकेट करें. इसीलिए जो मैप मेकर्स हैं उन्होंने इमेजिनरी लाइंस यानी ग्रिड लाइन और नेट का यूज़ किया मैप और ग्लोब्स पे. Thus, there are a number of horizontal and vertical lines draw on maps and globes. इसीलिए मैप पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, देखो दीज टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर लाइन from North Pole to South Pole. Any location on Earth is described by two numbers, latitude and longitude. If a pilot or a ship's captain wants to specify position on a map, these are the coordinators. The world would use the imaginary line that runs from east to west are called parallels or called latitudes. See here, these are west to east direction, right? So the lines which are drawn from west to east directions are called parallels. Or the imaginary line that run through north to south poles are called meridian, or the lines of longitude, north to south poles. So here these lines which are drawn from north pole to south pole, they are called longitude, and the line which are drawn from west to east direction, they are called latitude. So lines of latitude are east west circles around the globes, and here equator is situated at 0 degree latitude. It runs through the center of the globe, half the way between the North Pole and South Pole. This is our North Pole, and downside it is our South Pole. So these are the degree. Equator lies at 90 degree. Equator 90 degree पे lie करता है. North Pole 90 degree north and South Pole 90 degree south. The equator divide the earth into two equal halves. कि equator अर्थ को दो equal parts में divide कर देता है, जिसको बोलते हैं hemisphere. ठीक है, so here it has been shown by a red line. कि यहाँ पे red line से बिल्कुल सेंटर में ये इक्वेटर शो हो रहा है. ठीक है, हम इक्वेटर को किसी लाइन से शो करते हैं. लाइक यहाँ पे एक रेड लाइन है सेंटर में इक्वेटर की, दैट इज रेड इन कलर. सो इक्वेटर is a line drawn on center of the earth. After that, northern hemisphere, the upper half of the earth to the north of equator is called northern hemisphere. ऊपर का जो इक्वेटर पे पार्ट रहता है नॉर्थ साइड का, that is called northern hemisphere, and down side the part that is called southern hemisphere. ठीक है, so Europe is in northern hemisphere, and southern hemisphere, the lower half of the earth to the south of equator is called southern hemisphere, and Australia lies in southern hemisphere, right? southern hemisphere में ऑस्ट्रेलिया लाई करता है और यूरोप लाई करता है northern hemisphere में. now features of latitude lines के features क्या होते हैं? latitude lines के feature देखो, these line runs parallel to each other. ठीक है, they are always ऑल पैरेलल्स फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल. सेकेंड कि जितने भी पैरेलल है वो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं. ठीक है, राउंड द ग्लोब. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर हाउएवर शोन एज पॉइंट्स, और इनको हम शो करते हैं एज अ पॉइंट, राइट? और सबसे बड़ा आपका जो बिगेस्ट सर्कल है वो है इक्वेटर, एंड द सर्कल विच ग्रेजुअली बिकम शॉर्टर एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, द सर्कल्स बिकम शॉर्टर.
जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाने लगते हैं तो हमारे सर्कल छोटे होते रहते हैं। नाउ द नंबरिंग ऑफ पैरेलल्स, कि पैरेलल्स को हम नंबर कैसे करते हैं। द नंबरिंग ऑफ पैरेलल्स स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर विच इज़ लोकेटेड एट 90 डिग्री, कि जो नंबरिंग है वो पैरेलल की कहाँ से स्टार्ट होती है, इक्वेटर से, जो इक्वेटर कितने डिग्री का है हमारा, 90 डिग्री का। पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। पैरेलल्स आप कैसे मेजर करते हो, 0 से 90 डिग्री, ये देखो यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ और डाउन साइड 90 डिग्री साउथ, ठीक है, ये 90 डिग्री साउथ है। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 तक मार्क है, नॉर्थ में 90, साउथ में मार्क है। सो द टोटल 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दस देयर आर 181 पैरेलल, की टोटल आपके पैरेलल्स 181 हो जाते हैं। द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एन, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पैरेलल उनको एन से मार्क करोगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के पैरेलल्स है उसे एस से। नाउ द इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, वी हैव 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। पहला पैरेलल है आपका 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। आफ्टर दैट 20 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कैंसर 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ में कैप्रिकॉर्न। 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड आर्टिक सर्कल एंड 66.5 साउथ लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, राइट। लेटीट्यूड टेल अस हाउ फार नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर अ प्लेस लाई, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज longitude. The semicircle running from north to south on a globe or map are called lines of longitude. अगर हम देखें कि कौन कौन सी लाइन जो रन कर रही है, कहाँ से कहाँ को रन कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही है, तो इन लाइंस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखो जरा, ये लॉन्गिट्यूड है, या इसको लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ मेरिडियन भी बोलते हैं। इसमें जो बिल्कुल सेंटर में है, दैट इज प्राइम मेरिडियन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिडियन ऑफ अर्थ, and it is situated near London and it is the starting point for numbering meridian. मेरिडियन को नंबर करने के लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है प्राइम मेरिडियन, राइट। एंड कहाँ, कौन से प्लेस से हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन वेस्ट ईस्ट से, ठीक है। ये ग्रीनविच मेरिडियन है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन, राइट। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, वो लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड है इक्वेटर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, द पार्ट ऑफ अर्थ टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पार्ट है, टू 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। एंड द पार्ट ऑफ अर्थ टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट में पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। After that, the Greenwich meridian separate east from west. Greenwich meridian east और west direction को separate करता है। Greenwich meridian was chosen as the prime meridian of the world in 1884. 1884 में इसको क्या बोला था, इसको कहा गया था prime meridian. The meridian in the eastern hemisphere are marked as E एंड मेरिडियन इन द वेस्टर्न, जो ईस्टर्न साइड जो हेमिस्फेयर है उसमें हम ई वर्ड यूज़ करेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लिए डब्ल्यू वर्ड। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री वेस्ट आर इन द सेम लाइन, कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज लोकेटेड, कि एक प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट साइड कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। So do you know there is a place on the earth with no latitude and longitude, कि अर्थ पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई लेटीट्यूड भी नहीं है और लॉन्गिट्यूड भी नहीं, तो वो कौन सा प्लेस है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मीट्स द इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड 0 लैटिट्यूड 0, ठीक है। सो इट इज़ अ पॉइंट इन अटलांटिक ओशियन ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये अटलांटिक ओशियन में एक पॉइंट है, कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। लुक एट द मैप फॉर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ एंड 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट वे द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर मीट, जहाँ पे इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन मिलते हैं 0 डिग्री नॉर्थ साउथ में और 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। अब हम
नाउ वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ मेरिडियन कि मेरिडियन के फीचर्स क्या हैं. लाइक लेटीट्यूड्स, ऑल मेरिडियन आर ऑफ द सेम लेंथ. सेम लेटीट्यूड की तरह मेरिडियन भी सेम लेंथ के होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे दो मेरिडियन का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ, द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ग्रेजुअली डिक्रीजेज. तो मेरिडियन का डिस्टेंस डिक्रीज होता रहता है. मेरिडियन कट द लैटिट्यूड एट राइट एंगल. मेरिडियन राइट एंगल पे लैटिट्यूड को कट करते हैं. थैंक यू.